سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے واشنگٹن میں ملاقات کریں گے۔ ملاقات شام 4:30 بجے اوول آفس میں ہوگی، جس میں عالمی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو متوقع ہے۔ اس ملاقات میں فلسطین افغانستان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ، پاک بھارت صورتحال اور سیلاب کی تباہ کاریوں پر بات چیت کی جائے گی۔ ماہرین نے اس ملاقات کو انتہائی اہم قرار دے دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی صدر کی ملاقات آج ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے ملاقات کا شیڈول بھی جاری کر دیا۔ ملاقات اوول آفس میں ہوگی۔ وزیراعظم اور امریکی صدر کی ملاقات میں عالمی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو متوقع ہے۔ فلسطین افغانستان سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے پر بھی بات چیت ہوگی۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا کہنا ہے کہ آج کی یہ ملاقات انتہائی اہم ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان کی امریکہ سمیت دنیا میں اہمیت بڑھ گئی ہے۔ پاکستان غزہ سمیت اچھا ایجنڈا لے کر امریکہ سے بات کرے گا۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے اور امریکہ پاکستان کو بہت اہمیت دے رہا ہے، خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے دفاع عامر اسٹاف فیلڈ مارشل آصف منیر نے قوم کو یکجہت کیا۔ آج کی جو میٹنگ ہوگی یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ کے پرائم منسٹر پاکستان بہت اپنا ایجنڈا لے کر سوچ سمجھ کے ڈیلیبریشن کر کے ڈیفینس کے ساتھ اور فارن آفس سے کر کے گئے ہوں گے ڈسکشن ہو۔ پاک امریکہ سربراہان کے درمیان ملاقات میں پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور پاک بھارت صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی باضابطہ دعوت بھی دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وفاق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کی مدد کرے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ سیلاب سے پنجاب میں بہت نقصان ہوا ہے۔ BISP فوری ریلیف کا واحد طریقہ ہے۔ وفاق ادا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ بات نہیں مان رہا۔ اب نون لیگ نے یو ٹرن لیا ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ عالمی اپیل کرتے تو متاثرین کی بہتر انداز میں مدد ہو سکتے تھے۔ بلوچستان کا مسئلہ فوجی نہیں سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ ایسے فیصلے لینا پڑیں گے کہ عوام کو فائدہ ہو۔ ماضی میں بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیاب ہوئے تھے۔ قدرتی آفت کے دوران دنیا بھر میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں، تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے۔ کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں۔ صبح پنجاب کے چند وزیروں کے بیانات ہیں، امید ہے کہ وہ ان کے زیادتی خیالات ہوں گے اور پارٹی پالیسی نہیں ہوگا۔ 22 سندھ کو وفاقی حکومت سے سپورٹ ملا ہے، تنقید اپنی جگہ K4 پہ، کراچی میں کچھ منصوبے پہ، وہ اب ملا ہے جب شہباز شریف وزیر اعظم رہا ہے۔ دہشت گردی کا خاص طور پہ بلوچستان میں، مگر صرف بلوچستان میں نہیں، پختونخوا میں اور دوسری جگہوں میں بھی جس انداز سے اس کا فال آف کابل کے بعد اضافہ ہوا ہے وہ کوانٹیٹیولی آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے سامنے مسئلہ ہے یہ وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ماضی میں بھی اس دہشت گردی کو مقابلہ کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اسی طریقے سے ان کو شکست دلائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کی عوام کی جانب اٹھنے والی انگلی کاٹ دیں گے۔ سندھ میں کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو اپنے ترجمانوں کو سمجھائیں۔ BISP پر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے کہا جا رہا ہے دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہی، یہ مفت مشورے آ رہے ہیں۔ جس کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا اس کا BISP کے 10,000 روپے سے کیا ہوگا؟ ہم اسے 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا سے امداد مانگیں تو NFC کا پیسہ کس لیے ہے؟ کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ اب تک وزیر اعظم سے 1 روپیہ نہیں مانگا، پنجاب یا عوام کا پیسہ ہی عوام پر لگایا ہے۔ میں آصف زرداری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، بلاول کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوک پرسن ہیں ان کو سمجھائیں۔ سندھ میں اب اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے، دفتر سے نہیں نکلے، اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ BISP کے ذریعے امداد دے لوگوں کو۔ BISP دیتا ہے 10,000 روپیہ، مریم نواز نے ایک سیلاب زدگان کو
या एक एक सैलाब से मुतासरा शख्स को जो अपना घर खो बैठा है उसको मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरियम नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हजार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, जिनके 5-5 लाख के मवेशियों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हजार रुपए से क्या करेंगे? मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे? नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। कब तक पाकिस्तान यूं हाथ फैला के दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? पहली दफा देखा है कि कहा जा रहा है हुकूमती अपील्स की जा रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? अभी तक मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी 1 रुपया ना मांगा है ना लिया है, मैं हल्फन ये बात करती हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। हसास मालूमात पर चागी में ऑपरेशन किया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। एक ने हथियार डाल दिए, सरेंडर करने वाले दहशतगर्द ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों का एतराफ़ कर लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट में जाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि हसास मालूमात पर चागी में ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के घर को घेरे में लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऐलान भी किया मगर दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द जुबैर और निसार मारे गए जबकि जहांजेब ने सरेंडर कर दिया, जिसने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। दहशतगर्द जुबैर ज़राब तंजीम के लिए काम करता था और FC हेडक्वार्टर समेत चाइनीज की नकलो हमल को मॉनिटर करता था। वीडियो बयान में दहशतगर्द जुबैर की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाई का एतराफ़ किया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का मजीद कहना था कि दहशतगर्द तंजीम ब्रास्ट के प्लेटफॉर्म से ये लोग इनफरादी काम करते हैं जिसमें BLA और BLF शामिल हैं। ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें ब्रास्ट में मुत्तहद हो जाती हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द जब देखते हैं कि वो बच नहीं सकते तो खुद को जख्मी कर लेते हैं और अपने मोबाइल पर भी फायरिंग करके तोड़ देते हैं ताकि वो फॉरेंसिक ना हो सके। सरफराज बुगटी ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी इदारे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। PCB की शिकायत के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव की ICC ऑफिस पेशी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ICC ऑफिस में पेश हुए। ICC ने सूर्या कुमार यादव को सियासी बयानात देने से मना कर दिया। साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ को कल ICC ऑफिस में तलब किया गया है। आकिब कुरैशी बताएंगे। जी आकिब। देखें, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो ग्राउंड के अंदर टेंशन है वो अब ICC तक पहुंच गई है और ICC ने पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेटर्स को जो है वो तलब कर लिया है, जिसके लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत के बाद इंडियन कप्तान जो है सूर्या कुमार यादव वो ICC ऑफिस में पेश हुए हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ICC ऑफिस में पेश हुए हैं, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के सूर्या कुमार यादव को सियासी बयानात देने से मना कर दिया गया है ICC की तरफ से। जबकि सूर्या कुमार यादव के सियासी बयानात के बाद PCCI ने ICC को खत लिखा था और उसके बाद पाकिस्तान खिलाड़ी कल ICC ऑफिस में पेश होंगे। जराये का ऐसा कहना है। साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ को कल ICC ऑफिस में तलब किया गया है। आज पाकिस्तान के मैच की वजह से दोनों खिलाड़ियों को जो है फ्री हैंड दिया गया। अलबत्ता कल जो इंडिया का मैच है उस वजह से सूर्या कुमार यादव को आज ही जो है वो ICC तलब किया गया और उनको सियासी बयानात आइंदा देने के मुतालिक रोक दिया गया है। सही है, बहुत शुक्रिया बता रहे थे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और बिल गेट्स से मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन की जानिब से सैलाब में इमदाद का खैर मकदम करते हुए पोलियो के खात्मे ताउन पर जोर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सरबराहों ने मजबूत ताल्लुकात के अज़्म का इआदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने मार्का हक में कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की अमरीका में अहम शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, कसीरुल जहती, इलाकाई ताउन और तिजारत पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म और मोहम्मद यूनुस ने बाहिमी इज्जत, रवादारी, एतमाद और इलाकाई ताउन के अज़्म का भी अदा किया। बांग्लादेश के सरबराह ने सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के किरदार को खुशाइंद करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत ने दुनिया को दिखा दिया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से भी मुलाकात हुई। वजीर आजम ने बिल गेट्स फाउंडेशन की सैलाब के बाद दी जाने वाली इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। वजीर आजम ने पोलियो के मुकम्मल तदारुक के लिए फाउंडेशन के ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। बिल गेट्स ने भी पाकिस्तान की मुआशी और मुआशरती तरक्की के इक़दामात को सराहा और मुश्तरका ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। बदलते मौसम की बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। पेशावर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। नौशहरा में कच्चे मकान की छत गिरने से खातून और बच्चा जाम बहक हो गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सवात में कई घंटों से जिला भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे बरसाती नाले उबल पड़े। नालों का पानी सड़कों पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है, जबकि मैंगोरा खोड़ के बहाव में भी इजाफा हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में बादल खूब गरजते रहे, ताहम शहर में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। नौशहरा, मर्दान, सवाबी, हरीपुर और कोहाट में जोर का मींह बरसा, जिससे हर तरफ पानी ही पानी खड़ा हो गया। बारिश से दर्जा हरारत भी गिर गया। नौशहरा के इलाके पीर सबाग फार्म रोड पर कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और बच्चा जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए। लाहौर में बैरून मुल्क तालीम के हुसूल में रहनुमाई फराहम करने के हवाले से एक्सपो का इनेकाद हुआ। इसी हवाले से जुल्करनैन राना की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के निजी होटल में अल्टीमेट एजुकेशनल सोल्यूशन के ज़रिए तमाम स्टडी अब्रॉड एक्सपो हुई, जिसका मकसद बैरून मुल्क पढ़ने के ख्वाहिशमंद तलबा को ऐसे प्लेटफॉर्म से रहनुमाई फराहम करना था जहां वो दुनिया भर में अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले सकते हैं। स्टडी एक्सपो में तलबा का अमली तौर पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी करवाई गई। सर्टिफाइड काउंसलर्स ने बच्चों की काउंसलिंग की और 100% बैरून मुल्क में दाखिलों की जमानत भी दी। यूके को प्रायोरिटी बेसिस पे डील करें, उसके अलावा 3 अदर कंट्रीज़ हैं, स्वीडन है, आयरलैंड है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। ये एक्सपो होता इसलिए है कि स्टूडेंट आए, 1-to-1 कंसल्टेशन हो जाए एक्सपर्ट एडवाइजर्स के साथ। तलबा ने स्टडी एक्सपो को खूब सराहा। आजकल के स्टूडेंट्स को जो चीज़ नहीं पता वो ये है कि अगर यूके की पॉलिसीज चेंज हुई हैं तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। तो ये एक्सपो स्टूडेंट्स के लिए इसलिए लगाया गया ताकि उनको गाइड कर सके कि उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंटरेस्टेड तो होते हैं, जिन्होंने प्रोसेस भी कराना होता है, बट वो कुछ गलत लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं।